Hello everyone, this is Dr. Prachi Jain from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today, our topic of discussion is double integration. Double integral of any function fxy over the region R is denoted by double integral fxy dA, double integral fxy dx dy, and double integral fxy dy dx. Now the question arises, what is dA, dx, dy, dx? Actually, what we have to do, we have to divide the region R over the function fx, over which the function of xy is defined, into small strips. Firstly, we have taken the strips parallel to x-axis. Similarly, we'll take the strip parallel to y-axis. In this way, we can assume that this region is made up of infinite number of small rectangles. Let's take a small rectangle of dimension dx and dy. So this is the dimension dx and this one is the dimension dy. So a small rectangle is there. तो इस small rectangle की dimension अगर dx dy है तो इसके area को हम denote कर सकते हैं by dx. और अब हम उस curve को इस पूरे region R पे integrate करना चाहते हैं using this small rectangle's area. So we have written here dA or dA can be replaced by dx dy or dy dx. So in this form, we calculate double integration of any function fxy. Now evaluation of double integral. If the limits y1 and y2 are given as a function of x and x1 and x2 are constant, then we will firstly integrate with respect to y, then with respect to x. This can be understood through the graph also. Suppose that we have plotted these limits to identify the region. Firstly, we have drawn these two functions, y1 as a function of x and y2 as a function of x. This is x-axis, this one is y-axis, and these were meanings. Now x equals to x1 and x equals to x2. Then we have drawn the strip parallel to y-axis. First, we are integrating with respect to y first. So we have taken the strip parallel to y-axis. In reverse case, अगर हमने strip ली होती है parallel to x-axis, then we will be integrating also with respect to x firstly, which is the case 2 itself. So in this way, firstly we will integrate with respect to y first and then with respect to x. How will define limit? The limit के लिए हम क्या देखते हैं कि lower part of the strip is lying in the curve y1. So lower limit is y1 and upper part of the curve is lying on the curve y2 equals to phi 2x. So upper limit is phi 2x. Similarly, left part, यानी कि left limit of x is या smaller limit of the x is x1 and the larger value is x2, so x1 to x2. तो हम x के लिमिट्स के लिए चलते हैं from left to right and y के लिमिट्स के लिए चलते हैं from top to bottom. Always keep in mind this. Let's take another case when x1 and x2 are the functions of y and y1 and y2 are constant. तो in that case क्या हो जाएगा? हमारे x1 x2 functions हैं y के. So x1 and x2 के लिए हमने ग्राफ प्लॉट किए. हमने कहा x1 is a function of y and x2 is a function of y. And then y equals to y1 and y equals to y2 lines भी प्लॉट कर ली. So this is our the required region. अब इस region में हमने parallel to x-axis एक strip ले ली. We can see here कि left part of the strip is lying on the curve phi 1y and the right part is on the curve phi 2y. इसीलिए इसकी lower limit and upper limit मिल गई. इसी तरह से आप देख सकते हो y की limits के लिए lower part is on y equals to y1. Top और bottom की बात हमने की थी. Sorry. तो हमने कहा था बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो हमने यहाँ पे कहा बॉटम यानी कि y equals to y1 और ये हो गया y equals to y2. तो in this way we will always define the limits. Third case, when y1 and y2 and x1 and x2 all are constant, then we can integrate in any order, either firstly with x or with respect to y. इट्स ओनली अवर चॉइस, हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं इंटीग्रेट. हमने कहा ये x हो गया, ये y हो गया, हमने प्लॉट कर लिया x इक्वल्स टू x1, x इक्वल्स टू x2, y इक्वल्स टू y1
एंड y इक्वल्स टू y2। तो ये हमारी लिमिट्स प्लॉट हो गई। तो हम या फिर तो x एक्सिस के पैरेलल ले लें स्ट्रिप, या फिर हम y एक्सिस के पैरेलल ले लें। रिजल्ट हमारा सेम आएगा चाहे हम किसी भी ऑर्डर में इंटीग्रेट करें। तो ये तीन केसेस हमें मिल सकते हैं। कौन कौन से तीन केसेस, एक बार फिर से देख लेते हैं। या तो फंक्शन की लिमिट हमारी कुछ इस तरह से दी होगी कि y1 एंड y2 आर द फंक्शंस ऑफ x एंड x1 x2 आर कांस्टेंट। सेकंड केस कि x1 एंड x2 आर फंक्शन ऑफ y एंड y1 y2 आर कांस्टेंट्स। एंड थर्ड केस बोथ आर कांस्टेंट्स। बस हमेशा ध्यान रखना है व्हाइल राइटिंग द लिमिट्स, जब हम x की लिमिट लिख रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट, एंड जब हम y की लिमिट्स रख रहे हैं तो बॉटम टू टॉप। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल। Evaluate integral y dx dy where r is the region bounded by the parabolas y square equals to 4x and x square equals to 4y। तो जब भी हमें कोई भी डबल इंटीग्रेशन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू नो द रीजन। तो रीजन क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स। तो हमें निकालना है इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ दीज टू कर्व्स। तो हम निकालते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स, हम दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। एक कर्व की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, उससे हमने x की वैल्यू निकाली और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया। तो x के प्लेस पे पुट कर दिया वाई स्क्वायर बाई 4x। सो हमें क्या मिल गया, y टू द पावर 4 बाई 16 इक्वल्स टू 4y। सो y टू द पावर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 64y, y कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, y क्यूब माइनस 64 इक्वल्स टू 0। तो y की एक वैल्यू तो आ गई 0 और दूसरी वैल्यू आ गई 64 का क्यूब रूट, दैट मीन्स 4। करस्पॉन्डिंग हमने x की वैल्यू निकाली, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई 4 में पुट करके, तो हमें x की वैल्यू भी मिल गई 0 एंड 4। तो हमें दो पॉइंट्स मिल गए। कौन कौन से पॉइंट्स मिल गए, 0 0 एंड 4 4। अब हम इन कर्व्स को प्लॉट करेंगे एंड देन हम इंटीग्रेट करेंगे। चलिए प्लॉट करते हैं। तो हमारे पास एक कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। हम सभी को पता है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला होता है, और इस शेप में उस पैराबोला को हम बनाते हैं। तो हमने पैराबोला बना लिया, रफ डायग्राम बना रहे हैं हम यहाँ पे। दूसरा है हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, हमने वो पैराबोला भी ड्रॉ कर लिया। तो दिस डॉटेड रीजन इज आवर रिक्वायर्ड रीजन। हमने देखा था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 4,4 एंड 0,0, हमने मार्क कर लिए। अब हमें पता है ये वाला कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड दिस कर्व इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे नोट कर ली। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रीजन आर। अकॉर्डिंगली अब हमने क्या करना है, इस रीजन में एक स्ट्रिप लेनी है। सपोज दैट वी हैव टेकन अ स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हम वाई एक्सिस के पैरेलल भी ले सकते थे। तब हमने देखना है, लिमिट में कहा था लेफ्ट टू राइट देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में कौन सा कर्व आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। स्ट्रिप हमने बनाई है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हम वैल्यूज लिखेंगे x के टर्म्स में। तो x की वैल्यू हो गई वाई स्क्वायर बाई 4। सिमिलरली राइट साइड आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, तो x की वैल्यू हो गई 2√y। तो अब इस इंटीग्रल को लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट, देन विद रिस्पेक्ट टू y। वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। फंक्शन ऑफ y, लेफ्ट लिमिट थी हमारी वाई स्क्वायर बाई 4 एंड राइट पार्ट ऑफ द स्ट्रिप इज ऑन द कर्व 2√y, सो ये अपर लिमिट बन गई। अब इसी तरह से हम लिखेंगे y की वैल्यूज। तो y की लीस्ट वैल्यू 0 एंड हाईएस्ट वैल्यू बॉटम टू टॉप देखा हमने, तो 0 to 4 ले ली। इंटीग्रेट किया, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो y कांस्टेंट होगा। इंटीग्रेट किया तो मिला yx, x की लिमिट पुट की वाई स्क्वायर बाई 4 से 2√y। जब लिमिट्स पुट कर दी तो हमें क्या मिल गया, 2√y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 dy। अब हमने इसे मल्टीप्लाई करके फर्दर सॉल्व करना है। इंटीग्रेट करते हैं, हमें क्या मिलेगा, 2y टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस y टू द पावर 4/16।
तो अब हमको क्या करना है इसमें, अब हमें इसमें लिमिट्स पुट करनी है। जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो ये होगी 0 से 4 पे। लिमिट पुट करके जब हमने इसे सॉल्व किया, व्हाट वी विल गेट ओनली 48/5। अगर आप इसी की जगह स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस लेते तब भी आपको 48/5 ही मिलना था। तो इस तरह से आपने एक बार कोई एक एग्जांपल देख लिया जिसमें हमने स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस ली थी। बिल्कुल ऐसे ही अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम लिमिट्स लेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। हमारा सेकेंड एग्जांपल है, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल y dx dy over the part of the plane bounded by the line y equals to x and parabola y equals to 4x minus x square। और अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि ये कौन सी इक्वेशन हो गई, पैराबोला y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम y इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर को देखें तो माइनस अगर कॉमन ले लें तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x को परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हैं। हम इसमें अगर 4 ऐड कर दें विल गेट द परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली हमने लेफ्ट साइड में भी चेंजेस अप्लाई कर दिए। तो अब पैराबोला की इक्वेशन हो गई y माइनस 4 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर आप देखो तो अगर कैपिटल वाई से हम इसे डिनोट कर दें ऐसे कैपिटल एक्स से, तो ये हो गया y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहाँ पे इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, 2 and 4। तो इतना तो हमें मिल गया कि दिस इज अ पैराबोला और दूसरी है हमारी स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू एक्स। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो फॉर फाइंडिंग इंटरसेक्शन पॉइंट्स हम अगेन दोनों कर्व की इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। तो y के प्लेस पे x पुट कर दिया, 4x माइनस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x मिल गया। x को हम दूसरे साइड में लेके गए, x कॉमन लिया, x माइनस 3, सो x की दो वैल्यूज आ गई 0 एंड 3। करस्पॉन्डिंग हमने y की वैल्यूज निकाली, वो भी 0 एंड 3 आ गई। तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी मिल गए। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, इस कर्व को प्लॉट करेंगे एंड देन हम इंटीग्रेट करेंगे। चलिए हम प्लॉट करते हैं। तो हमारी लाइन दी हुई थी y इक्वल्स टू एक्स, तो वो तो बहुत इजी था, हमने प्लॉट कर लिया। दूसरा है पैराबोला विद द वर्टेक्स 2,4। तो रफ डायग्राम बनाना है, हमने रफ डायग्राम बना लिया। दिस इज द पैराबोला। तो हमने पैराबोला ड्रॉ कर लिया। इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं 3,3 एंड 0,0 भी प्लॉट कर लिया। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रीजन आर। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि हमें स्ट्रिप लेनी है। हम स्ट्रिप एक्स एक्सिस के पैरेलल ले चुके थे, इस बार हम वाई एक्सिस के पैरेलल लेके ट्राई करते हैं। हमने वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ले ली। अब हमने वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ली तो हमने देखा कि बॉटम ऑफ द स्ट्रिप इज लाइंग ऑन द कर्व वाई इक्वल्स टू एक्स। दिस इज वाई इक्वल्स टू एक्स, दिस इज वाई इक्वल्स टू 4x minus x square, and top of the strip is lying in the 4x minus x square. So इसी के करस्पॉन्डिंग अब हम लिमिट्स ले लेंगे। तो अब हमारा इंटीग्रल हो जाएगा I इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल y dy एंड dx। पहले विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे क्योंकि हमने जो लिमिट्स ली हैं आप देख सकते हैं y की ली हुई हैं और स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस है। तो y इक्वल्स टू x एंड 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये y की लिमिट्स हो गई। और जब x की लिमिट्स की बात करते हैं तो आप देखो x की लोअर वैल्यू है 0, लीस्ट वैल्यू, एंड हाईएस्ट वैल्यू इज 3। और ये आप कह सकते हो कि हम लेफ्ट और राइट में देखें तो लेफ्ट साइड में 0 आ रहा है और राइट साइड में 3 आ रहा है। तो 0 to 3। अब सिंपली इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट किया, y स्क्वायर बाई 2 लिमिट x टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx 0 to 3। लिमिट्स पुट करते हैं तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर 1/2 को बाहर लिख सकते हैं, बाहर लिख लिया, माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको हमने इंटीग्रेट करना है फॉर x, तो उससे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 0 to 3 सॉल्व किया, 16x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर dx। फर्दर सॉल्व किया तो 0 to 3 15x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब प्लस x टू द पावर 4 dx। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो 15x क्यूब बाई 3
minus 8x to the power 4 by 4 plus x to the power 5 by 5. लिमिट 0 to 3 सॉल्व भी हो जाएगा, 3 से कैंसिल होगा, इट विल बी 5, 4 से कैंसिल होगा, इट विल बी 2. So 1 by 2, 5x cube minus 2x to the power 4 plus x to the power 5 by 5, 0 to 3. हमने लिमिट्स पुट करके इसको सॉल्व किया. So what we are getting 54/5. So this is our final result. इस तरह से हमने एक एग्जांपल देख लिया. इसमें हमने स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस ली थी और इस एग्जांपल में हमने स्ट्रिप ली पैरेलल टू वाई एक्सिस. लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जिसमें दोनों ही लिमिट्स कांस्टेंट हो तो हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे हम स्ट्रिप पैरेलल टू एक्स एक्सिस पहले ले लें या फिर वाई एक्सिस के पहले, जैसे कि इस एग्जांपल में. तो एग्जांपल में हमने देखा कि हमें दोनों लिमिट्स कांस्टेंट दी हुई हैं. पहले dy लिखा है, दैट मीन्स कि ये लिमिट्स हमारी y की हो गई, और दोबारा हमने देखा तो dx लिखा था, तो ये लिमिट्स हो गई हमारे लिए x की. तो हम किसी भी ऑर्डर में इंटीग्रेट कर सकते हैं. हमने फर्स्टली इस इंटीग्रल को इसी ऑर्डर में इंटीग्रेट किया जिस ऑर्डर में दिया हुआ था. मैं दोनों ऑर्डर्स में आपको दिखाऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कैसे करेंगे. अगर हम इसे पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे होते तो क्या मिलता, आपको मिलता 3y³ 0 to 1 dx. हमने इंटीग्रेट कर लिया. y के लिमिट्स पुट करते तो मिलता x² + 1. नो लिमिट पुट हो गई है. अब हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. तो x³ 3 + x, नो लिमिट 0 to 3. तो हमें क्या मिला, 9 + 3 = 12. अब इसी की जगह अगर हम इंटीग्रेट करते पहले विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज लिखनी पड़ती है हमको. पहले 0 to 1, फिर 0 to 3, x² + 3y² dx एंड देन dy. जब हम इस ऑर्डर में इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है x³ 3 + 3y² x 0 to 3. हम जब इसमें इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता 0 to 1. x की वैल्यू रख रहे थे तो वी विल गेट 9 + 9y² dy. यहीं पे दिखा रही हूँ आपको. सो आगे देखते हैं. I2 = 0 to 1, 9 + 9y² दिया था, फिर से लिख लिया मैंने. सो आपने इंटीग्रेट किया तो 9y + 9y³ 3, लिमिट 0 to 1. लिमिट्स पुट करेंगे, वी विल गेट 12 अगेन. तो आप देख सकते हो हमने ऑर्डर दोनों में अलग अलग चेंज किया था. I1 में हमने पहले y के रिस्पेक्ट में किया और I2 में हमने पहले x के रिस्पेक्ट में किया, बट वी आर गेटिंग द सेम आंसर 12. इसलिए जब भी लिमिट कांस्टेंट होती है वी कैन फॉलो एनी ऑफ द ऑर्डर. अब आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि हमारा फंक्शन लिमिट्स किस तरीके से लेंगे. हम फंक्शन हमारा अगर 2 वेरिएबल्स का हो तो लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और अकॉर्डिंगली हम लिमिट सेलेक्ट करते हैं. जो भी स्ट्रिप लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लिमिट सेलेक्ट करते समय हमेशा ध्यान रखेंगे. कौन सी 2 चीज़ें आपको बार बार बता रही हूँ कि जब x के लिमिट लेते हैं तो लेफ्ट टू राइट देखते हैं, और जब y के लिमिट्स लेते हैं तो बॉटम टू टॉप देखते हैं. आई होप आपको वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी. These are some differences. Disclaimer. Thank you, everyone.